ત્યોહારનો અવસર છે, એમાં આપણે ખૂબ જ મીઠાઈ ખાઈએ છીએ. અને મીઠાઈમાં શું શું ખાવાનું, ઘરે બેસીને તમે કેવી રીતે સરસ મીઠાઈ બનાવી શકો એનો આજે તમે પ્રશિક્ષણ આપવાનો છે. થોડાક સેવને ગરમ પાણીમાં એને છોતરા ઉતારીને અને ગરમ પાણીમાં એને થોડુંક ઉકાળી લેવાનું. પછી આપણે ગોળની ચાસણી કરવાની. આ ગોલ્ડન ચાસણી જો કેવી સરસ લાગે. અને એમાં આવી રીતે આ બધું ધીમે ધીમે પછી પાક કરવાનું. અને પાક કર્યા પછી એમાં આવું તૈયાર થઈ જાય. પછી આ સેવનો મુરબ્બો તૈયાર થઈ ગયો. આ સેવનો મુરબ્બો આવી જ રીતે આંવળાના મુરબ્બા, બેલના મુરબ્બા બધા જ તમને બતાવીશ, અહીંયા મૂકેલા છે બધા. પછી આ ગોંદના લાડુ કેવી રીતે બનાવવાના, આ સોનપાપડી કેવી રીતે બનાવવાની, અને ચાકી તો આપણે ખાઈએ જ છીએ, તલની ચાકી. આ બધું એ નેચરલ સ્વીટ છે, એમાં કોઈ મિલાવટ નહીં. ને તો તહેવારોમાં મિલાવટ આટલી બધી થઈ ગઈ છે, એના લીધે લોકો માંદા પડી જાય છે. તો આજે યોગશાસ્ત્રની શરૂઆત પાકશાસ્ત્રથી અમે કરી છે. અને બધાએ લોકો આ યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, પંચકર્મા, ષટકર્મા કરીને બધા સ્વસ્થ થઈને અહીંયા બેસેલા છે. અને બેસીને ચલો અનુલોમ વિલોમ કરો. અનુલોમ વિલોમ એ તો આખા દિવસ કરી શકાય જે માંદા પડી ગયા છે. અને આ યોગાભ્યાસ કરીને જે સ્વસ્થ થઈ ગયા છે, પોતપોતાનો અનુભવ આપણા સાથે શેર કરશે. કોરોનાના લીધે જે કોમ્પ્લિકેશન્સ આવ્યા છે એને કેવી રીતે એ મટાડી નાખ્યા છે એ બધાથી આપણે સાંભળીશ. અને યોગાભ્યાસમાં આજે અમે આમળાના ઝાડ નીચે બેસીને કેવું સરસ અહીંયા વાતાવરણ છે. અને સૂર્ય ભગવાનનો તડકો છે. સવારે તડકામાં બેસીને અને આ બધું યોગ કરીએ. અને ભગવાન ધન્વંતરી આપણને જે જ્ઞાન આપ્યો, આપણે ધન્વંતરી જયંતિ મનાવીએ છીએ, દિવાળી મનાવીએ છીએ, પછી ભૈયા દૂજ, આ બધા તહેવારો આરોગ્યમ ધન સંપદાને આપણે ભૂલી ગયા. ન યોગાત પરમ ધનમ, ન યોગાત પરમ સુખમ, ન યોગાત પરમ બલમ. યોગ સાથે આપણે બધા તહેવાર મનાવવાના. હા, તો આ બધા આજે અને યજ્ઞ સાથે ચાલી રહ્યું છે. અને એક નાનકડો યજ્ઞ અમારે સામે પણ મૂકેલો છે. આમાં અત્યારે તો આ અગ્નિ થોડીક મંદ પડી ગઈ છે. અને આમાં પણ થોડું આ ગાયનું ઘી અને ગાયના ઘી સાથે આપણે યજ્ઞ કરીએ અને યોગ કરીએ. એનાથી શું ફાયદો થાય? ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત એ કરવાથી એ માતાજી એ તો एकदम આખા પરિવારને સારું કર્યું નાખ્યો, પડોશીઓને સારા કરી નાખ્યા. हाँ प्रणाम गुरुजी. हाँ, आपके आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार अब ठीक हो गया. विशेषकर मेरे हस्बैंड जो थे ना, एकदम सेंसलेस हो जा रहे थे बार बार. इनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी. कहाँ आपके हस्बैंड? सर खड़ा होइए ना आप. अरे खड़ा हुई तो नहीं तो अभी पूरा ही पड़ ही जाता आप तो सर लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी. हमारे बच्चे भी बीमार थे, लेकिन ये जाते वक्त हॉस्पिटल कह रहे हैं इनको ऑक्सीजन लगा हुआ है और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक होके आऊंगा, तुम इन लोग का ध्यान रखना. नहीं तो बहुत से हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए. और बच्चों को ठीक करने में सर वीकनेस तो बहुत इसमें आ गई थी. और मेरा पैर सर ये पूरा डैमेज हो गया उस टाइम में ही. अरे लास्ट में सब ठीक हो गए सर, मैं बेड पर आ गई. फिर भी मैं अपने बच्चों से भेज के, जो आपसे मैंने कहा कि एक दूसरे की मदद करना, थोड़ा प्रिकॉशन ले करके कि 2 गज की दूरी और मास्क को लेकर के मैंने पूरा कोरोनिल का किट जितना था बस्ती वालों में बंटवाया, ताकि ये लोग भी अपने आप में खड़े हो सके या फोन करके भी जिसको जिसकी जरूरत हो उतना तक पहुंचा सके. सर बस दूसरों की भी मदद की अच्छी बात है. हाँ जी सर, थैंक यू सर. और खुद कोरोनिल खा के योग करके जी कोरोना और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाया. जी चलो अगली बहन को पूरी तरह ठीक नहीं, इसलिए अभी आप अभी इसको भी ठीक करेंगे. जी तेरी सर, टांग जी यहाँ सर. ठीक करेंगे. ओके थैंक यू सर. ये टांग में दर्द है तो इसमें मड थेरापी, इसमें लीज थेरापी, अलाबू, स्नेहन, स्वेदन. अब मुड़ेगा, पूरी दौड़ेगी. अभी तो अभी बुढ़ी नहीं हुई है तू. चलो अगली बहन को बता. हाँ.
अभी मैं कह रहा था યજ્ઞ, આ યજ્ઞમાં અમે થોડુંક આમાં અંગારા જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારે આવી રીતે આમાં થોડુંક એનો ધૂમ્ર, એ યજ્ઞનો જે ધુમાડો છે ને એ વિશેષ લાભ કરતું હોય, એનાથી પણ એનો પણ ઉપયોગ કરજો. અને એમાં પછી થોડો ગુગ્ગળ અને આ જાત જાતની સામગ્રી છે જુદા જુદા રોગ માટે. अब જેને આર્થરાઇટિસ છે, કોઈ પણ રોગ છે, એમાં થોડો ગુગ્ગળ નાખી દેવાનો. આ ગુગ્ગળ અને ગાયનું ઘી, આ યજ્ઞનો ધુમાડો હોય ને એનાથી ઘણા બધા રોગો માટે. आपको क्या था बहन? ओम स्वामी जी, ओम। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पहले से, और लास्ट ईयर मुझे कोरोना हो गया था, तो बीपी एकदम लो हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई. उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जब थी तब भी मैं प्राणायाम करती थी, मेडिटेशन करती थी, और जैसा कि आपने बोला कि मैं भगवान की संतान हूँ, ये सब मैं रिपीट करती रहती थी, क्योंकि मुझे वापस घर जाना था, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना था. और घर आने के बाद हौसला रखवानो. हाँ, और घर आने के बाद में फिर मुझे बहुत एंजाइटी हुई, 6-7 महीने तक एंजाइटी रही. हार्ट पल्पिटेशंस होते थे, और जो भी खाते थे वो वॉमिट में निकल जाता था. साइनोसाइटिस भी हो गया. उसके बाद में धीरे धीरे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह करके ये सब ठीक हो गया. साइनस अभी तक भी था, बट जब मैं फिर यहाँ आई तो 2 दिन में वो भी ठीक हो गया मेरा. क्या बात है. और इसीलिए फिर ये मैंने आर्थराइटिस का क्या हाल है? आर्थराइटिस अभी ठीक है, अभी चल रहा है इलाज. આ કોરોનાથી આ કફજ જ્વર છે, પછી એનાથી વાત બળે, પિત્ત બળે, અને ત્રણેય અનુભવ કરીને બેસી છે આ અમારી બેન प्रज्ञा यादव. प्रज्ञा यादव. क्या थी अभी से? कहाँ से आई हो? मैं राजस्थान से आई हूँ. राजस्थान से आई है जी. लेकिन प्रज्ञा, अब तेरी पूरा प्रज्ञा जागृत हो जाए. हाँ, ऐसा ही लगता है रितंभरा स्वामी जी. तत्र प्रज्ञा. योग में कहा जाता है योग करने से रितंभरा नाम की प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो सत्य को प्रकाशित करती है. जी तो तुम्हारी आर्थराइटिस तो मिटेगा ही, और यज्ञ के साथ किया करियो जी. ऐसे. मैं इससे लेके विशेष लाभ. जाऊंगी. जी. यज्ञ भाई को देना है तो एकदम जवान, मिलिट्री जैसा जवान है. जी प्रणाम. ओम. मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ. कोरोना हो गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊँगा. 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, और आने के बाद कोरोनिल का बड़ा शॉर्टेज पड़ गया था. कोरोनिल लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया. और काफ़ी लोगों को उसके बारे में प्रचार तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने सहायता भी की. कोरोना के बारे में बताया कि बाबा योग है और बाबा रामदेव जी है तो सारी दुनिया जीवित है. ये मेरा मानना है. भाई योग है तो योग से आप अपने सब रोगों का, योग और रोग का बैरज समाधान कर सकते हो. और ये भाई अपना स्वस्थ हो गया. अगले भाई को देना. चोपड़ा जी, दिल्ली से आया हूँ सर. मेरे फेफड़े की जालियाँ सारी खराब हो गई थी सर. कपालभाति करो. कपाल भारती करने से, यहाँ आने से मैं 90% ठीक हो गया जी. 90%? हाँ जी, क्या बात है. 90% ठीक हो गया हूँ. आगे उम्मीद है कि 2-4 दिन और रहूँगा तो और ठीक हो जाऊँगा आपकी कृपा से, आपके योग से. जब तक बाबा जी हैं सारी दुनिया जिंदा है. धन्यवाद. तो बताओ, फेफड़े करीब 90% गड़बड़ हो गए थे. अब वो 90% फेफड़े वापस 90% तो ठीक करिए. अब 10-20% बचे हुए देखी जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी. ओ बेटा बोलो बोलो. कोई नमस्कार, मैं हिमाचल से आया हूँ. मेरे को कोरोना हो गया था. नाम क्या है? सुधीर चंदेल. हाँ. तो पहले मेरे को हुआ, उसके बाद 3-4 दिन बाद वाइफ को, बच्चों को, सबको हो गया. सबको चपेट में. तो एक तो नेगेटिविटी इतनी आ गई कि क्या करें. 2 कोरोनल की किट ली थी, वो भी किसी और को जिसको हुआ तो पहले दे दी. जब अपने को जरूरत पड़ी तो मिली नहीं. बट फिर हमने थोड़ा सा पूरे परिवार को हो गया तो थोड़ा योगा करके, ओम विलोम करके, कपाल भारती, क्योंकि बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, तो योगा से ही थोड़ा पॉजिटिविटी आई और उससे काफ़ी फर्क पड़ा. जैसे फेफड़े में सांस लेने में पहले प्रॉब्लम थी, सोने में रात को नींद नहीं आनी, हार्ट में ऐसे लगता था कि कुछ हो गया, लेकिन योगा और इससे ओम विलोम करके, कपाल भारती से काफ़ी फर्क पड़ा. धन्यवाद. अब कोरोनिल था और किसी को दे दिया तो योग से ही गुजारा हो गया अपना. उस टाइम बाबा जी वहाँ पे हिमाचल में थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत ना, ज़्यादा दूर थी तो उधर मिले नहीं. पूरे के पूरे परिवारों को, पीछे भी एक परिवार बैठा देना उनको भाई, पूरा परिवार का परिवार. दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा बच्चे मर गए, ऐसा जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है. हिंदुस्तान में किसी बच्चे को कोई असर नहीं. मैंने कितने बच्चों को देखा, ज़्यादा ही था बच्चों को, उनको तो सिला तुलसी ड्रॉप दे दिया.
बाकी तो 1/4 कोरोनिल, 1/4 स्वासारी और स्वासारी प्रवाही भी दे दिया, और बच्चे और थोड़ा गिलोई दे दी। बुखार उतर गया, सर्दी जुकाम कितने दिन में ठीक हो गया था। छोटा बाबू खड़ा हो, किरात ओम स्वामी जी। किरत के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये खड़ा होकर के बैठे जितनों के बराबर दिख रहा है, इतना सा छोटा। ये अभी 4 साल का है स्वामी जी। हाँ। हमें मार्च में कोरोना हुआ था और मुझसे शुरुआत होके सभी को हुआ। फ्लाइट में कैच हुआ था ऐसा उम्मीद है मुझे। इसे एक दिन के अंदर में फीवर और सब चीज़ें दूर हो गए थे सिम्टम्स इसके। मेरा खुद 1.5 दिन में ठीक हुआ था, बाकी परिवार का भी ऐसे ही चला, क्योंकि हम लोग पिछले जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, तब से कोरोनिल सब अपने साथ रखे हुए थे। जब कहीं निकलते थे तो कोरोनिल खाते थे प्रिवेंटिव तौर पे ही, ऐसा नहीं कि कोविड हुआ तब। बट कोविड होने के कारण फिर जल नीति और सब चीज़ें फॉलो की नेचुरोपैथी की, तो उसी की उम्मीद है कि 1.5 दिन में पूरा परिवार रिकवर हुआ। थोड़े से डेढ़ दिन में, एक दिन में किरत और 1.5-2 दिन में सारा कोरोना वापस उभर गया। बस ये है प्रिवेंशन का फायदा जी। बस उसके बाद में थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स थे, जैसे नींद आने में तकलीफ और थोड़ा वेट गेन हुआ बेटी को भी, तो वो भी अभी योग करने से उसका उपचार काफी हद तक हो गया। गुड़िया का क्या नाम है? गुड़िया का नाम धानी सामा। धानी जी भी ठीक हो गई, और रूपाली का तो और खतरनाक था वो ना। हाँ जी स्वामी जी, मुझे पहले से माइग्रेन था, बट कोरोना के बाद एकदम ट्राइजिमिनल नर्व का फर्स्ट अटैक आया, जो मतलब हर 15 दिन में आ रहा था। पर रेगुलर अनुलोम विलोम और मेधावटी लेने से काफ़ी फर्क पड़ा, और अब एकदम नहीं है बिल्कुल भी। तुमको सबको सारे उपचार कैसे पता है, सारी बीमारी? स्वामी जी हम आपको बहुत फॉलो करते हैं। दूसरा, हमारी मम्मा आपकी टीचर्स ट्रेनिंग में आए थे, तो रेगुलर योगा घर में। इनकी माँ जो है वो मेरी शिष्या हो गई है पूरी। यहाँ से टीचर्स ट्रेनिंग लेकर के पूरे परिवार को लाइन पे लगा रखा है जी। और ये गुड़िया भी, सब अब पूरा परिवार एकदम फिट है। कहाँ से हो बेटा? बॉम्बे से। बॉम्बे से। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरा परिवार एकदम इससे बाहर निकल गया, नहीं तो ये के प्रॉब्लम। छोटे बच्चों के लिए हमने ये सिला तुलसी ड्रॉप बना रखा है। अब इसको क्या करें, इस सिला तुलसी ड्रॉप को पानी के अंदर 1 बूंद ऐसे ही डाल दिया, ऐसे ज़्यादा है तो एक बूंद जीभ पर ही ऐसे डायरेक्ट डाल दिया। अंदर तक क्लीन कर देता है। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट है, इतना ज़बरदस्त है। शिलाजीत और तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। बच्चों को पानी में डाल के थोड़ा हनी मिला के पिला दो, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। और सारा काफ कोल्ड छोटी छोटी दिक्कतों से ही जूझते रहते हैं हम लोग। इसी के लिए हमने शिलाजीत के भी हमने 5 वर्जन कर दिए। शिलाजीत सबसे पहले लिक्विड दिया करते थे, फिर हमने इसका गोली बनाई शिलाजीत रसायन, फिर हमने शिलाजीत के कैप्सूल बनाए, फिर हमने अश्वशिरा भी तैयार की, फिर हमने शिलाजीत का भी ये तो लिक्विड ड्रॉप भी तैयार किया, शिलाजीत ड्रॉप्स तैयार कर दिया। अभी ये शिलाजीत ड्रॉप जो है ये अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमने ये भी निकाल दिया, क्योंकि इसको लेने में ना बड़ा दिक्कत वाला काम रहता था। उसको लो तो फिर वो चारों तरफ चिपटी रहती थी। तो ये शिलाजीत के ड्रॉप भी तैयार कर दिए। फिर ये शिला तुलसी, इसमें शिलाजीत और तुलसी ड्रॉप्स के नाम पर खूब लूट मची हुई है, खूब लोगों ने पैसा कमाया है। शिलाजीत, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, हमने प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस बताया, तो उसका गोली बना करके 50-50 रुपए के लोगों ने गोलियां बनाई। ठीक है, हमने लोगों को हेल्थ तो दिया ही। स्वामी रामदेव से सुन करके लोग ऐसे ही नुस्खे बना करके रजिस्ट्रेशन करा के करोड़पति भी हो गए। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। लोग पहले जिसको किसी एक छोटी सी बात का ज्ञान हो तो किसी को बता के राजी नहीं था। हमने सबको फ्री ओपन कर रखा है, कोई सीक्रेट नहीं। योग, यज्ञ कहते थे गुप्त विद्या है, योग विद्या, यज्ञ विद्या, आयुर्वेद की विद्या, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, इन सारी गुप्त विद्याओं को हमने ओपन चौड़े में ला के रख दिया। सब करो, कोई रहस्य नहीं और कोई डर नहीं किसी बात का। अब हवन कर लेगा तो क्या दिक्कत होगी, सारा डर निकल जाएगा। भूत प्रेत, डाकिनी, शाचिनी, पिशाचिनी, शनि, केतु, राहु, सारे साढ़ी सती, सारे ग्रह नक्षत्र जिसके ऊपर योग, गुरु, यज्ञ का, भगवान का अनुग्रह होता है, क्या ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाएंगे। चलो अगले भाई को देना। ये जवान बैठे हुए, खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, तो मजबूत आदमी है।
लखनऊ से आया हूँ। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सुनील- कपालभाति, 3 तो ज्यादा करो। हाँ सुनील कुमार गौड़ नाम है हमारा जी। मेरी इलेक्शन में अप्रैल में यूपी में इलेक्शन था, हाँ उसमें बड़ा बखेड़ा हुआ उसी चपेट में आ गया था और बुखार आया, फिर स्वाद और सूंघने की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। चली गई। हाँ, और मैं आपका बहुत ही 2002 से ही फॉलो कर रहा हूँ आपको। तो मैंने सोसारी और अणु तेल और गिलोय इसका सेवन करके, और ऊपर से इलेक्शन की वजह से इतना दबाव था कि आपको इलेक्शन में ड्यूटी करनी ही है, तो मैं सुबह 2 गोली खा करके और इलेक्शन ड्यूटी करके आया हूँ। और इसके बाद में पूरी तरह स्वाद और सुगंध का क्या हुआ? स्वाद लगातार ये सोसारी और गिलोय खाता रहा। कितने दिन में वापस आ ये गया? करीब 10 दिन लगा स्वामी जी। 10 दिन में ठीक हो गया। नहीं तो बहुतों का 2-2, 3-3 महीना लग रहा, और गंध लौट ही नहीं रही, स्वाद लौट ही नहीं रहा। वैसे फिर स्ट्रेस और हो गया, एंजाइटी डिप्रेशन और हो गया, नींद और उड़ गई, फिर हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ गई, एक के बाद दूसरा हो तो था। तो कोरोना कफत जड़, फिर वात भी बढ़ गए, पित्त भी बढ़ गया, पेनक्रियाज पर भी, लीवर पर, आंतों पर, सब जगह असर आता। ओम। उस गुड़िया को देना भाई पीछे लाल। ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम भव्या जैन है। मेरे को 1 साल से खांसी थी और जुकाम था। मैंने डॉक्टर वगैरह से टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा तुम्हें तो टीबी वगैरह हो सकता है। तो पर लेकिन जब मैंने कंठामृत खाई और ये शीला तुलसी, ये कंठामृत बड़ी जबरदस्त है, और शीला हाँ, तुलसी भी ले ली। और शीला तुलसी ली है। और यहाँ पे अभी मेरा 7th डे है, तो मैंने यहाँ पे यज्ञ थेरेपी में नस से लिया है। उससे इंस्टेंटली एकदम ही खांसी गायब हो गई है। इंस्टेंट एक ही फायदा। दिन में रिलीफ मिली है। लोगों को बिल्कुल। धुएं से कहते हैं खांसी होती है, हम धुएं से खांसी ढूंढते हैं, यज्ञ के धूम्र से। फर्स्ट डे से बहुत रिलीफ मिली है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरी अभी 12th हुई है, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ DU से। तो अब पता लगा यज्ञ और योग क्यों करते थे हमारे बड़े लोग। हाँ। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा, आगे वाली बहनों को देना। इधर भी बैठी हुई कुछ कहना चाहती है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, 5 જ प्राणायाम કરી લે, એનાથી ઘણા બધા રોગો મટી જાય। प्रणाम। मैं MP होशंगाबाद से हूँ और होशंगाबाद में आपसे मिल चुकी हूँ गुरुकुल में। हाँ गुरुकुल में जी, गया था। बहुत समय से हम लोग प्राणायाम करते हैं और मेरा कोरोना हो गया था। तो कोरोना होने के बाद ये दवाई खाई, इससे ठीक हुए, और फिर इसके बाद सब पूरे परिवार ने वो खाया, तो वो लोग फिर इससे कोरोना नहीं हुआ उनको। और बहुत लोग उसमें आए कोरोना में, तो मेरे बेटे ने सबकी बहुत मदद करी कोरोना इससे। और हम बहुत समय से आपको फॉलो कर रहे हैं स्वामी जी, सबको ये बताते हैं। और गिलोय भी लगी हमारे यहाँ, सब लोगों को बांटते भी हैं गिलोय। सबको बांटो। कितना पुण्य का काम है ये। गिलोय बांटो, तुलसी बांटो, एलोवेरा का एक पौधा लगाओ, साल भर में सैकड़ों पौधे तैयार हो जाते हैं। ये एलोवेरा ऐसा है, इसमें नर और मादा एक में ही है, अपने आप उसकी जनरेशन एक से दूसरा बढ़ता रहता है। उसका बिना शादी किए, बिना मेल फीमेल के अकेला ही बच्चे पैदा करता रहता है, चारों तरफ भर जाता है गमला पूरा। उसके उखाड़ के दूसरा लगा दो, अपने आप 1 से 2, 2 से 3 अपने आप बढ़ते चले जाते। आज जैसे मैंने पूरा मॉर्निंग सेशन में योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, एक एक बीमारी के लिए छोटे छोटे उपाय यदि पूरे अपना लिए जाए ना, तो रोग शेष नहीं रह सकता। तेरे को क्या था बेटा? ओम स्वामी जी, मेरा कोरोना हुआ था। मैं मेडिकल में हूँ एज ए सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दानापुर रेलवे में। तो चूँकि मैं कोरोना वॉरियर्स हूँ, तो मुझे तो करना ही था, पेशेंट के पास जाना ही था। उसके बाद मैं दिसंबर 2020 में मुझे कोरोना हुआ, जिसमें 60% लंग्स बचे थे। बस बाकी गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। 18 दिनों की अपनी छुट्टी गई। हम लोग को तो हॉस्पिटलाइज होना नहीं था, उस समय बेड बिल्कुल नहीं थे, तो घर में आइसोलेट होना पड़ा मुझे। अब दूसरों को बेड दे दिए तो खुद बिना बेड के रह गए। हाँ, घर में बच्चे थे, बेड कंडीशन में योग किया। बच्चे दोनों थे, हस्बैंड मेरे थे नहीं वहाँ पे। मुझे कुछ भी, मुझे कोरोनिल भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैं क्या कि जो ट्रीटमेंट मेरा था मेडिकल का, उसको मैं लेने के बाद जब मैं नहीं ठीक हुई,
सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तब मैंने योग किया और मेरे पास गिलोय के पेड़ थे, उसको मैंने पीना शुरू किया तो मैं रिकवर हो गई। स्वामी जी, मेरे पतिदेव जो हैं उनको यूरिन में 3+ प्रोटीन आ रहा है, इसीलिए मैं खास करके यहाँ आई तो आपके गिलोय, पास। गोखरू और आंवला स्वामी जी ये 3 महीनों से ले रहे हैं, थोड़ी 3+ है, जी बायोप्सी हो रखी है। कोई ना, वो भी ठीक करेंगे। इसमें गोखरू की बस्ती लेना, मिट्टी पट्टी भी करना, गोखरू की बस्ती एनिमा देंगे, मिट्टी पट्टी भी करेंगे, और चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गोगुल, वृक्कदोष शरबटी और पुनर्नवादि मंडूर और ये सब औषधियाँ भी साथ में चलाएंगे, ठीक कर लेंगे आप। कोई ठीक करेंगे इसको ना। हाँ स्वामी जी, मैं ले रहा हूँ। प्रोटीन के अलावा और तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, और कोई दिक्कत है। बीपी का प्रॉब्लम है, कंट्रोल है, लेकिन अभी मैं 3 महीने से जून से ही खा रहा हूँ, बीपी ग्रीड खा रहा हूँ और मुक्ता बटी भी खा रहा हूँ। तो अभी तो बीपी तो कंट्रोल आ गया होगा? हाँ, कंट्रोल आ गया है। और विक 2 सहर बटी और चंद्रप्रभा बटी और ये गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा पिए। गिलोय 1 चम्मच, गोखरू 1 चम्मच, आंवला 1 चम्मच और गिलोय, गोखरू, आंवले की बस्ती देंगे आपको ना, ले लेना। ले लिए। गिलोय, गोखरू, आंवले की बस्ती देनी है। अच्छा अच्छा, वो दूसरी बस्ती नहीं। तो ये गिलोय, गोखरू, आंवले की 5 दिन तक बस्ती लो और फिर इसको ऑल्टरनेट डे पर ले लो। तो ये गिलोय, गोखरू, आंवला कहने को छोटी छोटी औषधियाँ हैं, लेकिन इनसे ही पीने से, इन्हीं से गिलोय, गोखरू, आंवला से हवन करने से, हवन में आप इन्हीं का इस्तेमाल करो। गिलोय, गोखरू, आंवला, इसी का हवन, इसी की बस्ती, इसी का ही क्वाथ। तो ये पूरा बहुत जल्दी ही, और रो फूड खाओ, नमक मीठा सब बंद। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह, मैक्सिमम 1 महीना, पूरा प्रोटीन लीकेज ठीक। नहीं तो प्रोटीन लीकेज का वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं। और हमारे पास जितने भी रोगी आए, एक बचा नहीं जो ठीक ना हुआ हो, ये इसकी महिमा है। इनसे यहाँ है तो ये तो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। ना ना, निराश नहीं होना। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना पूरा एकदम प्रोटीन लीकेज पूरा। स्वामी जी, मैं हरिद्वार को बहुत नज़दीक से देखना चाहती थी, वो मेरा तमन्ना पूरा हो गया। कोई ना, स्वामी जी केवल उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि उनमें शक्ति आ जाए तो वो योग करके अपने को ठीक कर सके। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ेगा। तो आज हमें बात करी कोरोना અને કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન્સની। તમે યોગ કરશો અને સામાન્ય રીતે જે જુદી જુદી ઔષધો અમે દરરોજ આપણે બતાવીએ છીએ એનો ઉપયોગ કરશો તો કોરોના અને કોરોનાના લીધે જે કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે, બાળ ખરતા હોય તો કેશકાંતિ લેપ, કેશકાંતિ બસ્તી, કેશકાંતિ તેલ, કેશકાંતિ શેમ્પૂ, આંખની પ્રોબ્લેમ હોય તો આઈ ગ્રીટ, કાનની પ્રોબ્લેમ હોય તો ઇયર ગ્રીટ, નાકની પ્રોબ્લેમ હોય તો એમાં કર્ક્યુમિન गोल्ड की स्वासारी गोल्ड, दांतनी प्रॉब्लम હોય તો એલોવેરા અપામાર की દંતકાંતિ, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય તો હૃદયામૃત કાર્ડિયોગ્રેટ અને અર્જુનની છાલનો ઉકાળો, શ્વાસની પ્રોબ્લેમ હોય તો શ્વાસારી, વાતની પ્રોબ્લેમ હોય તો ઓર્થોગ્રીટ, આ નાનકડી બીપીની પ્રોબ્લેમ હોય તો મુક્તા વટી અને બીપી ગ્રીટ, શુગરની પ્રોબ્લેમ હોય તો મધુગ્રીટ કે મધુનાશિની। આ જે છે ને ઔષધિઓ, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मानी जे नानकड़ी विधिओ आपने बतावीए छीए अने तमे दररोज अपनावशो, नाना बाळकोथी मांडीने युवानोथी मांडीने वडीलो सुधी आखा परिवार माटे योग एक ब्रह्मास्त्र छे। तो आ बधा योग करजो अने निरोग रहेजो।